نہیں نہیں نہیں، ہماری کمیٹی کسی کے پریشر میں کام کرنے والی کمیٹی نہیں ہے. یہ عشاء خان اور مجاہدین اہل سنت جماعت کی کمیٹی ہے اور مشائخ نظام اور علماء دین پر جو ہے مشتمل کمیٹی ہے. یہ کمیٹی کو نہ کسی پولیس کا خوف ہے نہ کسی اور طاقت کا خوف ہوتا. ود سٹی ڈیولپرز کی خاص پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے 6,000 روپے پر اسکوائر یارڈ، شمشاباد ایئرپورٹ سے کچھ ہی دوری پر. تو جلد سے جلد ہم سے رابط ادا کریں. ود سٹی ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ، بیہائنڈ چوائس فنکشن ہال، VIP کالونی، چندرائن گٹا، حیدرآباد. سرکار دو عالم کے پیام امن و محبت و بھائی چارے کو عام کرنے کے اقدامات. کمیٹی کی ذمہ داران کی پریس کانفرنس. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں مرکزی میلاد جلوس بتاریخ 1 اکتوبر بروز اتوار کو 12 بجے دن تاریخی مکہ مسجد سے نکالا جائے گا. مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے صدر مولانا سید شیخ احمد قادری شتاری کامل پاشا، مولانا سید خادر محی الدین قادری جنید پاشا معتمد، مولانا حافظ محمد مظفر حسین قادری بندہ نوازی کنوینر مرکزی میلاد جلوس، مولانا سید آل رسول قادری الجیلانی حسنین پاشا جوائنٹ کنوینر مرکزی میلاد جلوس اور کمیٹی کے دیگر ذمہ داران نے بتاریخ 19 سپٹمبر کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مرکزی میلاد جلوس تاریخی مکہ مسجد سے ہوتا ہوا چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، چھتا بازار، پرانی حویلی، منڈی میر عالم، اعتبار چوک، بی بی بازار سے مغل پورہ پر قبل نماز عصر کو اختتام پہنچے گا. میلاد جلوس میں بلا لحاظ مذہب و ملت لوگوں کی بڑی تعداد کے شریک ہونے کی توقع کی جا رہی. میلاد مصطفیٰ کے ضمن میں پیام امن و محبت کو عام کیا جائے گا. میلاد ریلی میں اسلام کے پیام امن و بھائی چارگی کو عام کرنے کے لیے پلے کارڈز اور بینرز بھی لگائے جائیں گے. نمازوں کے اوقات میں مساجد میں باجماعت نمازوں کی ترغیب بھی دی جائے گی. میلاد ریلی میں شہر کے سرکردہ علماء اکرام، مشائخ عظام اور ذمہ داران کی نگرانی میں نظم و ضبط کی برقراری کے اقدامات کیے جائیں گے. ایک مثالی و منفرد میلاد ریلی یہاں پر انعقاد عمل میں لائی جائے گی. مختلف مذاہب کے نمائندوں کی شرکت کے ذریعے بھائی چارگی اور ہم آہنگی کو عام کیا جائے گا. تمام عوام سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ دونوں کمیونٹیز کے لوگ بھی آپسی سوجھ بوجھ سے اور ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو سمجھتے ہوئے اپنے اپنے تہواروں کی خوشیاں پولیس کا بھرپور طریقے سے تعاون کرتے ہوئے ہموار طریقے سے تہوار کی خوشیاں منائیں. آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات. پیش رپورٹر شیخ ابراہیم کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. معزز مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے عہدیداران اور ذمہ داران و مشائخ نظام و علماء دین اور معزز مختلف چینل سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، آج یہ پریس کانفرنس حضرت العلامہ مولانا سید شیخ احمد شتاری صاحب قبلہ المعروف کامل پاشا صاحب تو معتمد مرکزی میلاد جلوس کمیٹی مولانا سید خادر محی الدین جنید پاشا صاحب، سیف باقری صاحب، احمد عبدالحق خان صاحب، مولانا منشاد پاشا خادری صاحب، مولانا سلطان محمد صاحب، مولانا عرفان اللہ نوری صاحب سیف انیس ملت، اور ہمارے ہر دل عزیز جو ہمیشہ سے جو جلوس کی ابتدا ہے اس کے ایک سرگرم تنظیم کے جو ہے سربراہ مولانا عبدالعزیز خان صاحب طاہر اور جملہ تشریف فرما حضرات. آج یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حسنین پاشا قبلہ جوائنٹ کنوینر سید آل رسول حسنین پاشا قبلہ برادر عزیز اور جملہ تشریف فرما مشائخ نظام، اگر کسی کا نام مجھ سے چھوٹ پا رہا ہے تو پھر ہمارے صدر صاحب ان کو مخاطب کریں گے انشاءاللہ. مولانا شجاعت الدین افتخاری صاحب قبلہ جو ہماری تنظیم کے جو ہے سرگرم محرک سربراہ شخصیت ہے. تو یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دنوں سے عوام الناس بلکہ بالخصوص اہل سنت الجماعت کے جو ہے عشاء خان جو اہل سنت الجماعت اور میلاد پاک کے جشن منانے والوں میں قسم کی تشویش پائی جا رہی تھی کہ مرکزی میلاد جلوس اب کے نکل رہا نہیں نکل رہا تو کیسا؟ کیوں کہ اتفاق سے
दूसरे बरदरान वतन का जुलूस भी 12 रबी नूर के दिन ही है। तो अब ये हम गौर व खौज करने के बाद, हमारे कायदीन से भी गौर व खौज करने के बाद, तबादला ख्याल करने के बाद कि जितने भी मशाइख निज़ाम हैं सबके मुश्तरका राय से ये अमल तय पाया कि इस्लाम बग़ैर सेक्रीफाइस के जो है ना फला ना फूला। तो हर जगह आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई हिन हयात से ही सेक्रीफाइस। तो फिर क्यों, जब हम आक़ा के ग़ुलाम हैं तो क्यों हमारे जुलूस को उस दिन के लिए मुलतवी कर कोई और दिन का इंतखाब क्यों ना करे कि दूसरे बरादरान वतन को भी जो आज़ादी के साथ उनका जुलूस और उनकी ईद मनाने का मौका क्यों ना फराहम करे। तो इसलिए तय कर मुत्तफ़िक़ आरा से हमने 12 रबी नूर के जुलूस को मुलतवी कर 15 रबी अव्वल को जो है इस जुलूस का जो है इनेकाद अमल में लाने की पूरी कोशिश, और आपके ज़रिए जो है चैनल के ज़रिए अवाम उन्नास को इतला करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साल है गुज़िश्ता की तरह यानी हस्ब अमलदार आमद ख़दीम जो अहले सुन्नत वल जमात के उत्साह खान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुलामान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो जुलूस का इनेकाद अमल में लाया जाता था, वैसे ही जुलूस अब के बार भी कुछ नए ओहदेदारों के साथ, नए नौजवानों के साथ एक नई कमेटी तश्कील पाकर वैसा ही जुलूस इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बमुक़ाम मक्का मस्जिद से, जो तारीख़ी मक्का मस्जिद है, और जुलूस भी तारीख़ी रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब इस जुलूस में नौजवानान अहले सुन्नत और मशाइख़ निज़ाम भी शामिल हो चुके हैं। पहले से ही शामिल थे, हमेशा से शामिल थे, मगर अब क़ियादत की बागडोर जो है नौजवान मशाइख़ निज़ाम के हाथ में जो है मुत्तफ़िक़ आरा से जो है सौंप दी जा रही है। तो ये जोश भी ऐसा ही रहेगा इंशाअल्लाह, जैसा कि किसी ने खूब कहा, उख़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नज़र आती है उनको अपनी मंजिलें आसमानों में। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास एक सीनियर मोस्ट इस जुलूस के हिस्सा जो बनते थे हमारे नेमतुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला, कहीं दूसरे तरफ जाने की वजह से अपने साहिबजादों को जो है भेजा है, तो उनका भी ममनून व मशकूर है। तो उषा खान रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये गुजारिश करता हूँ कि जो 12 रबी नूर को जो जुलूस निकलता था इस साल के लिए खाली, वो 15 रबी नूर को जो है जुलूस निकलेगा तारीख़ मक्का मस्जिद से, और उसकी जो सरकारी कैलेंडर की जो तारीख़ रहेंगी वो 1 अक्टूबर रहेगी और दिन रहेगा इतवार का, और 12 बजे 12:30 बजे तक जितने भी मुकामात से जुलूस पूरे मक्का मस्जिद के पास जमा होंगे, चाहे याकूतपुरा हो, रेन बाज़ार हो, बाग़ जहरा हो, गोट्टेपल्ली हो, फलकनुमा हो, इंजन बोली हो, पहाड़ी शरीफ हो, बारकस हो, जितने भी काले पत्थर हो, फतेह दरवाज़ा हो, हर तरफ से जुलूस जो है निकल कर जो है मक्का मस्जिद के पास जो है इजमाई शक्ल को जो है इख्तियार करेंगे, मरकज़ियत में शामिल हो जाएंगे। फिर वहाँ से 12:30-1 बजे अब वो कौन झंडी दिखाएंगे, वो सदर साहब, मोहतरमा साहब और अराकीन कमेटी जो है उसका जो है मुंतखब करेंगे। ऐलान उसका जो है आइंदा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप हजरात से मुलाकात होती रहेंगी मुसलसिल, तो उसमें ऐलान किया जाएगा सदर मोहतरम की तरफ। तो अब ये जो जुलूस हस्ब साबिक़ की तरह जो रूट रहेंगे वो मक्का मस्जिद से शायान शान तौर पर निकल कर चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, मदीना बिल्डिंग, सालारजंग म्यूजियम से होता हुआ उधर नहीं जाना है। अच्छा, मोहतरमा साहब करेक्शन भी करें, तो मदीना सर्कल के पास से छत्ता बाजार में टर्न होगा, छत्ता बाजार से जो है फिर पुरानी हवेली, फिर वहाँ से जो है मिराला मंडी से होता हुआ हस्ब साबिक़ जो है मुगलपुरा जो साबिक़ा वाल्टा होटल थी अब नहीं रही, तो वहाँ पर जाकर जो है स्टेज पे उलमा दीन के खिताबात के साथ दुरूद व सलाम के साथ जो है इख्तिताम पज़ीर होगा और क़बलत असर जो खाने वगैरह खिलाएंगे, जो स्टेज वगैरह लगेंगे, हाँ। जो लाइटिंग वगैरह लगेगा उसका क्या रहेगा? किसकी जगह डेकोरेशन रहेगा, खाने का रहेगा, डेकोरेशन वगैरह सब इंशाल्लाह जो है ये जो दूसरे बरादरान का वतन का जो जुलूस है उसके बाद ही जो है इंशाल्लाह डेकोरेशन भी होंगे, खूब सजाया भी जाएगा, ताम के एहतमाम भी होंगे वो रहेंगे। और उससे पहले मसाजिद में महफिलें जो है मुनक़्क़िद होंगी, जलसे मुनक़्क़िद होंगे बराबर, वो सब होगा 12 रबी नूर की दिन। खाना के दिन तो लोग जैसे स्पीकर वगैरह लगाते, सजावट होती, खाने खिलाते, उसके लिए वो सब यानी जो कुछ भी कर सकते हैं मगर किसी को डिस्टर्ब भी बगैर कर सकते हैं। तो खाना रोज खिलाओ, 12 रबी नूर को तो खूब खिलाइए, अहले अक़ीदत तो खूब खिलाते हैं आका के गुलामी का सबूत और अटूट वाबस्तगी के खातिर, वो सब अपनी जगह पर ऐसा खाना खिलाइए कि ताकि दूसरे बरादरान होता है कि किसी इंसान को भी कोई तकलीफ नहीं होता, रास्ते वगैरह बगैर रोके के बगैर डिस्टर्बेंस होकर वो कर सकते हैं। मगर जुलूस के बारे में इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो उसके बारे में आइंदा फिर बात करेंगे, क्या सजाना, कब सजाना, कहाँ खिलाना, कहाँ पिलाना, क्या पकाना, वो सब बाद में बात करेंगे इंशाअल्लाह। फिर लोग जो है जुलूस के मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू हो रही है उसी पर आज इख्तिताम करेंगे। तो शायान शान पैमाने पर बोलिए, सजावट के लिए कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ रास्तों की रुकावट के लिए रोक टोक है।
सजाने के लिए रोक टोक कुछ भी नहीं, सजाया जो जाता था तो रास्ते में रुकावटों के साथ भी सजाया जाता था, मगर हालात अलग होते थे। अब इस मखसूस मौके पे इत्तेफाक से दूसरे बरादरान की वतन अजीज की जो है वो कुछ तकारीब होने की वजह से रास्ते की रुकावटों को हटा के बाकी सजाना तो चौतरफ सजा सकता है, बगैर किसी रास्ते को तकलीफ दे के कहीं भी सजा सकते हैं। जी साहब। इत्तेफाक के बाद में तारीख और दिन तब्दील किया गया है, यस। तो मेरे दिल में एक शुबा है, शक नहीं आपकी कमेटी के ऊपर? नहीं, हमारी कमेटी किसी के प्रेशर में काम करने वाली कमेटी नहीं है। ये उस्सा खान और मुजाहिदीन अहले सुन्नत जमात की कमेटी है और मशाइख निज़ाम और उलमाए दीन पर जो है मुश्तमिल कमेटी है। ये कमेटी को ना किसी पुलिस का खौफ है ना किसी और ताकत का खौफ होता। ये आका के इश्क में जो है जश्न मनाने का जो है एहतमाम करती है, तो आका के इश्क में जिसको दिलों में रहता है उसको किसी किस्म का प्रेशर और खौफ नहीं होता। जी उसका सूफी से ताल्लुक है या नहीं है? क्योंकि हर साल जुलूस था सूफी के बैनर पे लिखा। नहीं, सूफी कोई एक मिनट, सूफी ये भी सूफी है। सूफी कोई एक तंजीम का नाम नहीं है। सूफी का जो फुल फॉर्म है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया, यानी जितने भी अहले सुन्नत वल जमात की जो शाखें तंजीमें हैं वो सबको एकजा कर एक लोगों को बोलने के लिए आसानी होने के लिए वो बनाए हुए कि सूफी कोई वो भी एक कोई पूर्ण फुल मिला के तंजीम नहीं है, सब मिला के जो है प्लेटफॉर्म था वो ऐसा। तो ये अभी भी इसमें कौन है, आप जरा सूफी बोल रहे हैं, इसमें कौन सूफी में नहीं है? अब्दुल अजीज साहब, उमशाह साहब, शुजा साहब, जुनेद पाशा, कामिल पाशा, हसरैन पाशा, ये सब पूरे बानियान में से, इरफानुल्लाह नूरी साहब, ये जितने भी नियामतुल्लाह खादरी साहब, ये जितने भी सब है। तो पर्टिकुलरली कोई सूफी बोल के ऐसा वो नहीं है, मतलब भाई ये सब है। अब हम और एक आपको देते हैं आज यम जैसी मरकजी मिला जुलूस कमेटी लिख लो आप, ये SUFI था, ये MM जैसी थी, सब एक ही थे, कोई ऐसा गैर नहीं है। पूरे अहले सुन्नत जमात के सिपाही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे सब एक हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। इत्तेफाक से आपको जो लेटर पैड दिया गया वो इस नाम से दिया एक ही है। वो लोग ये क्या डेट की वजह से वो लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे क्या? नहीं, डेट की वजह से इत्तेफाक इख्तिलाफ का नहीं है, किसी की तबीयत खराब रहती है, अब किसी की कोई मसरूफ रहती, इस वजह से नहीं है, मतलब बाकी और कोई किसी तरह का कोई इख्तिलाफ या इत्तेफाक ना इत्तेफाक कुछ भी नहीं है। आका का जुलूस है। और फिर दूसरी चीज़, अब की कोई मसरूफ है, जैसा रहमतुल्लाह खादरी साहब क़िबला है, आउट ऑफ चले गया, अनवर अहमद साहब है, मदीना शरीफ चले गया, सुबह इत्तेफाक हुआ, तो इसमें कोई किसी का इख्तिलाफ और इत्तेफाक नहीं है। जो निकलने की कोशिश करिए, तो वैसे उनसे अपील करते हैं, बिल्कुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन बराबर हमारी जो मरकजी मिला जुलूस कमेटी है उसकी कई शाखें भी जो है अमल में आएंगी और वॉलंटियर्स भी रहेंगे इंशाल्लाह। हम अवामुन्नास से सब में पहले तो आपके चैनलों के जरिए गुजारिश करते हैं, बिलखुसूस जोशले नौजवानों से, कि वो हालात को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हमेशा 12वीं सब कुछ जो बाहर निकलते थे अब निकलने की जरूरत नहीं है, इस बात से कि दूसरों के तकारीब चलते रहते हैं कि एक हम जो जुलूस को मतलब पोस्टपोन करने का मकसद ही है कि अमन और ज़ब्त को जो है बरकरार रखा जाए, अमन और आमान की दिल की गहराइयों से तबलीग की जाए, ये हमारा मकसद था। तो अब वो मकसद भी इसलिए हम नौजवानों से भी उसी मकसद के लिए गुजारिश करेंगे कि अपना जोश और जज्बा जो 12 रबी नूर की जो है शब को मनाते थे, तो 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह ज़रूर, जैसा कि 15 रबी नूर को जुलूस है तो उससे एक दिन पहले ज़रूर जश्न मनाते हो जुलूस में शामिल होते ज़रूर रहेगा इंशाल्लाह। और बेहतरीन बंदोबस्त जो है पुलिस वाले हमको तयक़ुन दिए हैं कि बेहतरीन जो है शान निशान बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। जो सेक्रीफाइस करे हैं मुसलमाना ने हैदराबाद और बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात के जो जिम्मेदारों की तरफ से जो सेक्रीफाइस जो कुर्बानी दिए हैं कि वो कभी खाली नहीं जाएगी इंशाल्लाह। बेहतरीन खूबसूरत रंग लाएगी वो, और इत्तेहाद के लिए भी, अमन व ज़ब्त के लिए भी, एक दूसरे शहरियों के दिलों में अपनी मोहब्बतों को समाने के लिए भी और बेहतरीन काम में आएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे अब्दुल अजीज खान जी CP साहब से जो नहीं एक मिनट, CP साहब से जो मीटिंग हमारी कुछ नहीं, मरकजी मिलाद जुलूस की एप्लीकेशन देने के लिए गए थे। क्यों कि जुलूस बड़े पैमाने पे होता तो किसी एक इहाते में देने के बदल जो है मरकजी ऑफिस को जो है कमिश्नर पुलिस को जो है दरख्वास्त देने गए थे, कोई डिस्कशन के लिए नहीं गए। झंडियों को ले लेके कुछ जो है ना क्या है, मतलब 2 फेस्टिवल एक साथ, वो झंडों को लेके ना इत्तेफाकी नहीं होना के तो जुलूसों का एहतमाम किया गया था 2008 से, क्योंकि हम रहते इधर ही है कि मादाना पेट में 2004 में ये झंडी निकालने पे, झंडी लगाने पे झगड़ा हुआ था, गली गली जुलूसा निकलते थे। तो हम ये करें कि पूरे गलियों से आके एक जगह जमा होकर जितना चाहे जश्न मनाए आखे की मोहब्बत में बोलकर एक रूट तय करे थे, जिसमें हमारे अब्दुल्ला खान साहब भी जो है शुरू से जिम्मेदार और बानियन में रहे। तो ये इसकी इब्तिदा ये थी कि वो झगड़े पंचायत ख़त्म करेंगे। तो अब झगड़े पंचायत में समझता हूँ क्योंकि 2008 से अल्लाह के करम से शान जो है जुलूस निकल रहा है
تو اب اللہ کے کرم سے جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے یہ کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تگودو نہیں کرنا ہے، اس لیے جو ہے ہم نے اہتمام کیا۔ سب ایک 50 کا 21 کا مطلب اپیل وہی ہے کہ ان حالات میں ویسا نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 12 ربیع نور کے بعد میں نے 15 ربیع نور کی شب میں انشاءاللہ ضرور نکلیے۔ جو اپنے شاہ نشام اہتمام کرتے تھے جشن منانے کا، ویسے اہتمام انشاءاللہ کریں گے، یہ گزارش ہے۔